Hello students, I am Ashwani. Today I am here to teach you Code of Civil Procedure 1908. But some students and people said this is the complex procedure code. But I said it is the very simplest procedure code. So this class for the judicial aspirants and who are pursuing your education and who are prepared for the some other examinations. This is the very important class. Kindly consider and look forward this class for your benefit. Today we are starting from meaning. What is the Civil Procedure Code? It is a procedural law, provides the procedure and methods for enforcement of civil rights for the every citizen for filing the civil suit in the courts. Means CPC provides the procedure for the matter and file under the Civil Procedure Code and civil suit. Some laws are deals under this, like Indian Contract Act, Transfer and Property Act, Hindu Succession Act, Tort Act. If anything happen under this act, then the civil procedure provides the procedure and remedies by filing the civil suits in the court. There is one maxim, it is the very important, ubi jus ibi remedium. That means where there is a right, there is a remedy. Actually, the main objective of the CPC is to ensure fair trial, justice, and efficient dispute resolution, and to prevent delay, multiplicity of suits, and abuse of process, and to balance the interest of both parties, plaintiff and defendants. This is the main objective of the civil procedure. Now, come to the next. Today, I will tell you the history of the Civil Procedure Code. I think no one tell about the history of the Civil Procedure Code in the colleges. So it is the very important to tell you, to understand you, what is the history of the Civil Procedure Code. And I will tell you each and everything. I will memorize you. I will understand you how to memorize, how to read CPC. I will tell everything for your benefit, but you should concentrate on my lecture. It is very important lecture for your education purpose, for your preparation, for the any examination which you want to appear. Now come to the history. First time in India, enacted in 1859, known as Uniform Civil Procedure Code. But it is not applicable to the Presidency Small Cause Court and not to the
Supreme Court in the presidency town of Calcutta, Bombay and Madras. Some time ago, before 1908, we known CPC as Uniform Civil Procedure Code, but it is not applicable to the presidential small court, cause courts, and not to the Supreme Court in the presidency town. There was 3 Supreme Court that time in 1859 or before. Supreme Court in the presidential towns. उस समय पे सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंसी टाउन्स के हुआ करते थे. उस समय 3 थे, कोलकाता एंड बॉम्बे एंड मद्रास. कलकत्ता Supreme Court in the presidency town established in 1700, approximate 1700, and Bombay and Calcutta in between to 1700 to 1800. Now, finally come to the Code of Civil Procedure. It is enacted in the year of 1908. हमारा 1908 में सिविल प्रोसीजर कोड को इनेक्ट कर दिया गया था. अब इनेक्ट तो हो गया, बट इनेक्ट किया किसने? आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होगा आपके कॉलेज में. आप अपने कॉलेज में अपने टीचर्स को भी पूछना, सर ये सीपीसी को किसने ड्राफ्ट किया था, या फिर सीपीसी ड्राफ्ट करने वाला व्यक्ति कौन था. नाउ आई विल टेल यू. Civil Procedure Code 1908 was drafted by the British government during the colonial period of India. उस समय पर colonial period था 1908 में या इससे पहले. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर colonial period में हमारा सीपीसी ड्राफ्ट किया था. प्राइमरी ड्राफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सीपीसी written by the Sir Earl Richards, who was the law member of the Viceroy Executive Council at the time. Sir Earl Richards उस समय पे लॉ मेंबर थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के. उन्होंने सीपीसी का ओरिजिनल ड्राफ्ट तैयार किया था. उनके साथ और भी लोग थे उनकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, बट जो ड्राफ्ट करने वाले मेन व्यक्ति थे सर अर्ल रिचर्ड थे. आई थिंक, मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा आपको, या फिर आपके कॉलेजों में भी ये पढ़ाया गया होगा. तो इसको ध्यान से पढ़ें और नोट करें अपने नोटबुक में. अपने कॉलेज में पूछना अपने सर से जाके या मैम से जाके, मैम सीपीसी किसने ड्राफ्ट किया था, बताएंगे वो आपको. सीपीसी इज द एक्ट नंबर ऑफ 5 of 1908. 1908 का एक्ट नंबर 5 था सीपीसी. एक्चुअली जो सीपीसी डिवाइडेड है मैं बताता हूं. सेक्शंस, ऑर्डर्स एंड अपेंडिक्स. बट यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए और अच्छे से डिवाइड किया है और अच्छे से दिखाने की कोशिश की है इसको, जिससे आप अंडरस्टैंड करें और आगे का प्रोसीजर समझें. प्रिलिमिनरी सेक्शंस given in the CPC, section 1 to section 8, and CPC also divided into the 11 parts. ये जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं. आप इनको ध्यान से सुने और नोट भी करें. ये आते हैं एग्जामिनेशंस में और कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से लिखें, ध्यान से समझें, ध्यान से सुने. और सीपीसी में टोटल सेक्शंस हैं 158. फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें ऑर्डर प्रोवाइड किए गए हैं. उसमें टोटल ऑर्डर है 51, ऑर्डर 1 to 51, and appendix also provided in the CPC. There was
there is 8 appendix in the CPC. This is the very important. Now I try to understand you procedure of the civil procedure code. अगर आप सिविल प्रोसीजर के थ्रू किसी कोर्ट में जाएंगे, आपको कोई रेमेडी लेनी है या फिर आपके साथ कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में हुआ हो, चाहे वो टॉर्ट में हुआ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में हुआ हो, वो कोई भी मैटर हो सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है आपके बीच में, आपके और दूसरी पार्टी के, मैं बता देता हूं यहां पे, आप प्लेंटिफ हो गए अगर, और अपोजिट पार्टी होगी डिफेंडेंट। यहां पे दो होते हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। आपके अगेंस्ट कोई सिविल रॉन्ग हुआ है तो आप प्लेंटिफ है, जिसने किया है वो डिफेंडेंट है। सिविल रॉन्ग हुआ है मींस आपकी किसी ने प्रॉपर्टी ले ली है, या फिर आपके कोई घर में आ गया है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, या फिर टॉर्ट में कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, तो आपको क्या करना होगा फिर उसके बाद? कोर्ट में जाएंगे, भाई इसने हमारी प्रॉपर्टी ले ली है, या फिर इसने हमारे साथ ये रॉन्ग किया है, इसके लिए ये रॉन्ग किया है, तो हम आपको रेमेडी भी चाहिए, तो उसके लिए कोर्ट अवेलेबल है ना। आप फिर किस कोर्ट में जाएंगे, कौन से कोर्ट में आपको जाना इंपॉर्टेंट है, कौन सा कोर्ट आपको रेमेडी प्रोवाइड करेगा, क्या वो आपके जुरिडिक्शन में होगा कि नहीं होगा। आपको प्लेंट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर जुरिडिक्शन की बात कर रहा हूं। यहाँ 3 प्रकार की जुरिडिक्शन होते हैं, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। वो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द पेक्यूनरी एंड टेरिटरी एंड सब्जेक्ट मैटर, कहां पर सिचुएटेड है आपका। अगर आपके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, सिविल रॉन्ग हुआ है, तो सीपीसी है, सीपीसी आपको रेमेडी प्रोवाइड करेगी। आप सीपीसी के अंडर जाइए ना कोर्ट में, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जो भी आपके साथ रॉन्ग हुआ है या फिर कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, उसकी रेमेडी मिलेगी। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कोई रॉन्ग हुआ, किसने किया, मैं आपको यहां से पूरा प्रोसीजर समझाता हूं, ध्यान से समझें, ये बहुत समझने की बात है। किसने किया, तो 2 पार्टी होंगी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो सबसे पहले पार्टीज टू सूट प्रोवाइडेड इन द ऑर्डर 1, देयर इज 2 पार्टीज। 2 पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ होगा, देयर इज 2 और मोर पार्टीज, ज्यादा भी पार्टी हो सकती है। तो अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो अकेले तो नहीं जाएंगे, किसी ने आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, या फिर किसी ने आपके साथ सिविल रॉन्ग किया होगा, या फिर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया होगा, या फिर कोई भी सिविल रॉन्ग हुआ होगा, उसके लिए 2 पार्टी तो होंगी ना। समझिए, समझने वाली बात है। तो 2 पार्टी होंगी तभी तो सूट फाइल होगा ना। पार्टीज टू सूट, फिर क्या होगा नेक्स्ट ऑप्शन, फ्रेम ऑफ सूट्स। आपका जो जो घटना हुई है उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेम करेंगे सूट को। समझिए,
ये बाकायदा सीपीसी में दिया गया है, एकदम क्रम से, सर से लेके पैर तक आप कहां से शुरू करेंगे, कहां पे एंड होगा, पूरा प्रोसीजर दिया गया है। सिर्फ समझने की जरूरत है, कंसंट्रेट करने की जरूरत है, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा ध्यान दो। पहले पार्टीज होंगी, फिर क्या क्या हुआ वो फ्रेम करेंगे हम सूट, जो घटनाएं हुई या फिर जो कुछ भी हुआ, जो ब्रीच हुआ वो फ्रेम करेंगे। फिर आप तलाशेंगे किसको, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स, वकील साहब को तलाशेंगे कोर्ट में जाने के लिए। वकील साहब हमारे साथ ये हुआ है, इन्होंने हमारे साथ ये सिविल रॉन्ग किया है, या फिर उन्होंने ये वाला हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये घटना है। आप क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर गिवन इन ऑर्डर 3। सीक्वेंस देखिए, अब सीक्वेंस क्या बनाया हुआ है सीपीसी में, वेरी ब्यूटीफुली रिटन इन द सीपीसी। नाउ अब क्या होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा, ऑर्डर 4। फिर इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन्स, आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस, इशू ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। भाई सर्विस ऑफ सम्मन तो इशू करेंगे ना, आपने सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया, सूट रजिस्टर हो गया, फिर क्या करेंगे, आप पार्टीज को बुलाएंगे ना कोर्ट में, बात करेंगे पार्टीज से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप सम्मन करेंगे पार्टीज को, जो अपोजिट पार्टी होगी उसको बुलाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट ये, आपने इनके अगेंस्ट ये सिविल रॉन्ग किया है, इसके लिए इन्होंने सूट इंस्टीट्यूट किया है, इसके लिए हम आपको कोर्ट में बुला रहे हैं, तो हमको क्या करेंगे, सम्मन करेंगे। सम्मन कर दिया हमने, सम्मन कर दिया, प्लीडिंग जनरली होगा शायद नेक्स्ट, हाँ ऑर्डर 6 प्लीडिंग जनरली। प्लीडिंग जनरली में फैक्ट डिसाइड करेंगे, जो मटेरियल फैक्ट है, और उसमें एविडेंस देखेंगे क्या है, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग देखेंगे, बहुत सारी चीजें आई विल टेल यू इन डिटेल। दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन क्लास, सो आई विल टेल यू प्रोसीजर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताना चाहता हूं, ये आपकी समझ में आ जाए ना, पूरी सीपीसी इजीली समझ में आ जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, ये बहुत सिंपलेस्ट प्रोसीजर कोड है, बहुत सिंपलेस्ट है, बहुत इजी है, बस समझने की जरूरत है आपको। प्लीडिंग जनरली हो गया, प्लेंट हो गया। प्लेंट में कोर्ट डिसाइड करेगा क्या ये मनी सूट है, या फिर जो भी उसके पार्टिकुलर्स होंगे कंटेंट के, वो डिसाइड करेगा, प्लेंट हो गया। फिर आपको क्या करना होगा, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम फाइल करना होगा। जो प्लेंट दिया हुआ है, जो घटनाएं हुई है, वही प्लेंट में दी होगी जो आपने बताई होगी। ऑर्डर 7 में फिर क्या करोगे आप, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, अपना रिटर्न सबमिशन करोगे, या फिर सेट ऑफ के लिए बोलोगे या फिर काउंटर क्लेम के लिए बोलोगे। अब आगे क्या होगा इसके बाद, अब अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। आप कोर्ट में जाओगे, पार्टी अपीयर होंगी, बात करेंगे जज साहब के सामने, जज साहब डिसाइड करेंगे जो भी होगा। अगर आप नॉन अपीयर हुए, आप अपीयर नहीं हुए, तो क्या होगा, नॉन अपीयरेंस पे भाई आपके अगेंस्ट भी डिसाइड हो सकता है ना। नॉन अपीयरेंस पे अगर आप अपीयर नहीं होगे, तो आप किसी मैटर को लाइटली नहीं लोगे, तो आपके अगेंस्ट भी तो जा सकता है मैटर।
ऑर्डर 9 में दिया हुआ है। अब कोर्ट में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगा, बाय द कोर्ट होना चाहिए, बाय द कोर्ट लिख गया, सॉरी, दिस इज ए क्लरिकल एरर। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगा बाय द कोर्ट, ऑर्डर 10 में लिखा हुआ है। कोर्ट एग्जामिनेशन करेगा पार्टीज का। फिर क्या होगा? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस। उसके बाद एडमिशन होगा। उसके बाद कोर्ट ये देखेगा किस किस फैक्ट को एडमिट करना है, किसको एडमिट नहीं करना है, वो डिसाइड करेंगे। फिर क्या होगा? प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपने अननेसेसरी डॉक्यूमेंट दे के रखे हैं प्रिंट में, या फिर आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, वो प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, सीधा सीधा, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऑर्डर 13। फिर सेटलमेंट ऑफ इशू एंड डिटरमाइनिंग ऑफ सूट ऑन इशू ऑफ लॉ और ऑन इशू एग्रीड अपॉन द पार्टीज। आप यहाँ पे चाहोगे, अगर आपको सेटलमेंट करना है इशू को, आगे कोर्ट में नहीं फर्दर प्रोसीड करवाना है, तो यहाँ सेटल भी कर सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इशू ऑफ द लॉ, वो भी हो जाएगा, ये पार्टीज अगर एग्री होंगी तो। फिर क्या होगा? डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, बुला लिया जाएगा और सूट को डिस्पोज कर दिया जाएगा। ऑर्डर 15, सीधा सीक्वेंस दिया हुआ है ना, जिसका आपका डिस्पोजल हो जाएगा। अब मैं 15 तक आपको समझा देता हूं। पार्टीज होंगी सूट फाइल करने के लिए, फ्रेम ऑफ सूट होगा, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर होगा, आप वकील साहब से ही तो कराओगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा, कोर्ट में जाओगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो जाएगा। ऑर्डर 4 में इशू ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन हो जाएगा। ऑर्डर 5 में समझो, सोचो, प्लीडिंग जनरली। ऑर्डर 6 प्लेंट। ऑर्डर 7 रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। ऑर्डर 8 appearance of parties and consequence of non-appearance. Order 9 examination of parties by the court. Order 10 discovery and inspection. Order 11 admission. Order 12 production, impounding and returning of documents. Order 13 settlement of issue and determination of issue on issue of law or on issue of agreed upon. Order 14 and disposal of suit at the first hearing. Order 15. Now अगर आपकी सूट डिस्पोज नहीं हुई, आप एग्री नहीं हुए अपने टर्म्स पे, जो टर्म आपने किसी के साथ रॉन्ग भी किया, आपने किसी को हार्म भी किया, और फिर आप उसको उसका पे करने के लिए एग्री भी नहीं हो रहे हो, तो सूट क्यों डिस्पोज होगी? अपोजिट पार्टी, मतलब जो प्लेंटिफ है, वो क्यों डिस्पोज करने के लिए बोलेगा? फिर तो वो कहेंगे हम चलो देखेंगे कोर्ट में तुम्हें, फिर तो आगे कोर्ट का प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? विटनेसेस बुलाए जाएंगे, एडजॉर्नमेंट होगा, हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का होगा, यही होगा। सोचो, समझो, सीधा सीधा समझने वाली बातें ये तो। अगर डिस्पोज नहीं हुआ तो आप सम्मन करोगे, सम्मनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। आप सम्मन करोगे विटनेस को, किसी को अड़ोस पड़ोस का होगा या फिर जिसके सामने जो इंसिडेंट हुआ, सिविल रॉन्ग हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। अगर वो विटनेस अगर जेल में है या कहीं कन्फाइन होकर रखा है, उसको बुलाने के लिए भी हम सम्मन करेंगे, उसको बुलाने के लिए भी बोलेंगे भाई आओ भाई कोर्ट में।
ऑर्डर 16A, अगर वो नहीं आ पाता है, कोई विटनेस नहीं आ पाता है, तो आप जज साहब से क्या कहोगे? जज साहब हमें एडजॉर्नमेंट दे दो, अगली डेट पे हम विटनेस को लेके आएंगे। अभी हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो, या फिर कोई किसी जरूरी काम में वो विटनेस फंसा हुआ हो, तो आप जज साहब से कहेंगे, मिलॉर्ड काइंडली ग्रांट मी एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट प्रोवाइडेड इन द ऑर्डर 17, एडजॉर्नमेंट मिल जाएगा। आपको अगली डेट पे बुलाया जाएगा, अगली डेट पे हियरिंग ऑफ सूट होगी, मींस जो सूट है उसी की तो हियरिंग होगी, वहां पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा, ऑर्डर 18, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा, ऑर्डर 18। सारा सीक्वेंस है, सिर्फ समझने की जरूरत है आपको, सिर्फ समझने की। मैंने कहा ना, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको मेमोराइज कराऊंगा, सिर्फ देखो आप ध्यान से, कंसंट्रेट करके क्लास को। अब क्या होता है, यहाँ पे एग्जामिनेशन हो गया विटनेस का। अब कोर्ट को जरूरत है, कोर्ट कहता है कि आपने इसके सपोर्टिंग के लिए एफिडेविट फाइल नहीं किया, एफिडेविट प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 19। एफिडेविट एक्चुअली प्लेंट के साथ लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। क्या क्या आपने प्लेंट में लिखा है वो बताया जाता है कि जो इस प्लेंट में लिखा है ये सही है, मेरी नॉलेज में। आपने उनको, वकील साहब को हायर किया था ना, वकील साहब से कहा था ना, तो वो सब आपके बिहाफ पे तो काम करते हैं। तो वो एफिडेविट सारे डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है, तो वो एफिडेविट है। एफिडेविट बहुत जगह प्रयोग में आता है, हर जगह एफिडेविट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगाया जाता है। अगर वो कहीं नहीं है आपके प्लेंट में, तो वो जज साहब कहेंगे, या फिर नहीं है, सपोर्टिंग नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आपको लगाने के लिए बोलेंगे, वो आपको लगाएंगे, आप उसको लगाएंगे। फिर क्या होगा, जज साहब सुनेंगे आपके केस को, फिर क्या आएगा, जजमेंट एंड डिग्री आ जाएगी आपकी, ऑर्डर 20। अगर जज साहब को लग रहा है कि ये इसके साथ रॉन्ग हुआ है, अगर उनको लग रहा है इसके इस पर कॉस्ट लगानी चाहिए, तो कोई कॉस्ट भी लगा देंगे। किसी ने किसी के साथ सिविल रॉन्ग किया है और वो टाइमली उसको पे करने के लिए रेडी नहीं है, फिर क्या होगा, कॉस्ट ही लगेगी ना आप पे, कॉस्ट लगा के जजमेंट डिग्री आ जाएगा। फिर क्या होगा, जजमेंट डिग्री तो आ गया, अब एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट डिग्री होना है, ऑर्डर 21, उसे एग्जीक्यूट कराएंगे। मैं आपको सारा समझाऊंगा, स्टार्टिंग से समझाऊंगा, एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझाऊंगा, कहां पे क्या क्या होता है ना। पार्टी टू सूट होगी, who may be joined as plaintiff, power of court to order separate trial, misjoinder and non-joinder, suits in the name of wrong plaintiff, ये सब होगा, मैं सारी चीजें समझाऊंगा। ऑर्डर फर्स्ट का है, ऑर्डर सेकंड में फ्रेम ऑफ सूट, कैसे सूट फ्रेम होगी, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम और relinquish the part of the claim, omission to sue for one of several relief. I will tell you each and everything. Institution of suits, कब सूट कमेंस्ड होगी बाय द प्लेंट के द्वारा, कब सूट रजिस्टर होगी इन कोर्ट में। सर्विस ऑफ समन्स में आपको समझाऊंगा, डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट, समन्स गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस, प्लीडिंग जनरली, अमेंडमेंट एंड प्लीडिंग, फेलियर टू अमेंड आफ्टर द ऑर्डर, प्लेंट में आपको समझाऊंगा, रिजेक्शन एंड प्लेंट भी बताऊंगा, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ sue or relief, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम में रिटन स्टेटमेंट कैसे फाइल किया जाता है, particulars of set of to be given in the written statement, procedure when party failed to
present written statement call for by the court, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अगर पार्टी अपीयर नहीं होती है, नॉन अपीयरेंस होता है पार्टी का, तो क्या होगा? ऑर्डर 9 में सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज पूरे डिटेल में समझाऊंगा। एडमिशन, इंपाउंडिंग, प्रोडक्शन एंड रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बट आपको कंसंट्रेट करना होगा। एफिडेविट भी समझाऊंगा, जजमेंट एंड डिक्री भी समझाऊंगा, एंड एग्जीक्यूशन भी समझाऊंगा। एग्जीक्यूशन में 106 रूल है, इंपॉर्टेंट रूल सारे जो भी होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए और लीगल प्रोसीडिंग्स के, मैं सारे बताऊंगा, सभी ऑर्डर्स के बताऊंगा। मैं जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको सभी ऑर्डर्स के बताऊंगा। मैं आपको कमीशन भी बताऊंगा, मैं आपको इंटरप्लीडर सूट भी बताऊंगा, स्पेशल भी बताऊंगा, समरी प्रोसीजर भी बताऊंगा, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ये भी बताऊंगा, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन ये भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा मैं, ईच एंड एवरीथिंग। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कैसे होगा, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री कैसे होगी, टेम्परेरी इंजंक्शन है, इंटरलोकेटरी इंजंक्शन, मैं रेफरेंस भी बताऊंगा, रिव्यू भी बताऊंगा, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन बताऊंगा, अपील फ्रॉम ऑर्डर बताऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू, ईच एंड एवरीथिंग, बट आप पढ़ते जाओ, कंसंट्रेट करो। अब आते हैं हम प्रिलिमिनरी सेक्शन पे, जो आज शुरू करना जरूरी है। तो मैं आज प्रिलिमिनरी सेक्शन शुरू करता हूं। आपने शायद बेयर एक्ट तो निकाल के ही रखी होगी स्टार्टिंग से, अगर नहीं निकाल के रखी है तो निकाल लो, बहुत जरूरी है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ द 1908, सेक्शन फर्स्ट सेड शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। अगर ये बताइए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले आप किसी से मिलने जाओगे, आप किसी से मिले तो क्या कहोगे? बताओगे हाय आई एम अश्वनी, हेलो, हाथ मिलाओगे, हाय आई एम अश्वनी, अपना नाम बताओगे, मैं इस समय पैदा हुआ, अपना डेट ऑफ बर्थ भी बताओगे, और मैं यहां घूमता फिरता हूं, मीन्स एक्सटेंड बताओगे, है ना? तो आज आप सीपीसी से हाथ मिलाओ, मैं आप बोलो हाय सीपीसी, अपना नाम लेके हाय सीपीसी। तो मैं स्टार्ट करता हूं। शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट may be cited as the Code of Civil Procedure 1908। हाय, मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हूं। Commencement, it shall come into force on the first day of January 1909, that means 1st January 1909। मैं 1st जनवरी 1909 में इनफोर्स हुआ, कम इनटू फोर्स हुआ। एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट, क्या? एक अमेंडमेंट आया था अभी रिसेंटली, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें सेक्शन 95, सेक्शन 96 एंड 5th शेड्यूल को अमेंड किया गया था। तो यहां पर क्लॉज ए था, वो था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहां पे जम्मू एंड कश्मीर पे ये अप्लाई नहीं होता था, लागू नहीं होता था। बट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस
Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 and with effect from the 31st of October 2019. उसके बाद से होल इंडिया पे अप्लाई हो रहा है सीपीसी. बट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज, निकालो अपना प्रोवाइजो और पढ़ो. ये स्टेट ऑफ नागालैंड पे एंड द ट्राइबल एरियाज पे नहीं होता है. मैं बताता हूं वो आपको. द प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में by notification in the official gazette extend the provisions of this code or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal area as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification. एंड एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है मैं एक बार पढ़ लेता हूं, फिर आपको समझा देता हूं. इन दिस क्लॉज ट्राइबल एरिया मीन्स द ट्राइबल एरियाज विच इमीडिएटली बिफोर द 21st डे ऑफ जनवरी 1972. जो ट्राइबल एरिया इमीडिएटली बिफोर द 21st ऑफ जनवरी 1972 से पहले की ट्राइबल एरियाज होंगे, वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरिया of Assam as referred to the para 20 of the 6th schedule of the constitution. para 20 देखिए आप जाके 6th schedule का of the constitution of India in relation to the, और उसका explanation का 4 भी देख लीजिएगा. तो मैं आपको इसका बता देता हूं. the state government may by the official notification extend the provisions of this code to the whole or any part of the नागालैंड, या तो पूरे पार्ट में या उसके स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स फिट. एंड सच ट्राइबल एरिया इंक्लूड द ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम. आसाम की ट्राइबल एरिया इंक्लूड की गई. टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 21st जनवरी ऑफ 1972. 1972 से पहले की ट्राइबल एरिया ऑफ द आसाम. ये है मैंने इसका समरी प्रोवाइजो की और एक्सप्लेनेशन. तो आप इसको जाके पढ़िए, समझिए अच्छे से. और मैं यहाँ पे अवेलेबल हूं आपके लिए, आपको सीपीसी पढ़ाने के लिए, आपको सिंपलेस्ट प्रोसीजर समझाने के लिए, है ना. This is not complex procedure. This is very simplest procedure. I will tell you, I will understand you, I will memorize you each and everything provided in the CPC with case laws. ये आपके जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में काम आएगा. ये आपके जो भी जिस क्लास में आप लॉ कर रहे हैं, जिस क्लास में आपका, जिस सेमेस्टर में भी आपका सीपीसी होगा, वहां पे आपको काम आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीसी और पूरा क्रम से दिया हुआ है. बस इसको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करने की जरूरत है. मैंने आपको यहाँ पे सीपीसी तो पढ़ाया है, इतना मेहनत किया है. मैं चाहूंगा अगर आपको सीपीसी अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करें क्लास, जिससे उनके भी काम में आए. जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस क्लास को अपने साथियों को भी दें, उनको फॉरवर्ड कर दें, जिससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए, उनको भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए, उनको भी कुछ नई चीजें प्राप्त हो जाएं. बहुत सारी नई चीजें होंगी जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होंगी, जो मैंने इस क्लास में बताई, और बहुत सारी आगे नई चीजें ऐसी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा. वो सारी चीजें आपके काम की होंगी. तो मैं अब यहाँ से विदा लेना चाहूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए.
आप जितना ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे मुझे, मैं उतना ही ज्यादा मोटिवेट होऊंगा और उतने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। मैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के क्लास कवर करूंगा, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, इंडियन एविडेंस, नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, BNSS, चाहे इंडियन पिनल कोड, नाउ it is BNS 2023, Contract Act, Tort Law, Jurisprudence, Administrative Law, मैं सारे लॉ यहाँ पर कवर करूंगा। बट उसके लिए मुझे आपके प्यार की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें। और हाँ, लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझको कमेंट में बताइए। और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए उसके बारे में आप कमेंट में बताइए, तो वो सारी चीजें मैं करने की कोशिश करूंगा और आपको 100% देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।